ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ, ਦੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦੋ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆ ਹੋਸਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਜਣੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਆ 3 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਮਾਈਕ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਓ ਬੰਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਓ ਬੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3 ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਬੀਲਾਈ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਗਾਂਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਖੁਦ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਰੋਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨ ਕਬੀਲਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 3 ਦਿਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਬੀਲਾਈ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੀਆਂ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਕਵਾ ਕੇ ਕੁਰਕੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਬੀਲਾਈ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੋ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨਸ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਬੀਲਾਈ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਵਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਹੈ ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਠਲੱਗੂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾਇਆ
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਉਹ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਵਾਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਬੀਲਾਈ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਈਫਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਤੇ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਗਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਸਪਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਜਿੰਨਾ ਟਰਾਈਬਲ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਾਟ, ਗੁੱਜਰ, ਸੈਣੀ, ਲੁਬਾਣੇ, ਕੰਬੋਜ, ਖੱਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਰਾਈਬਲ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਚैप्टर 4, 1947 की मारकाट में आर्य समाज की भूमिका। बहुत से लोग जानते कहते हैं कि मुसलमानों ने स्टार्ट किया, सिखों ने स्टार्ट किया, हिंदुओं ने स्टार्ट किया। आज हम इतिहास के पन्नों और सबूतों के सहित पेश करेंगे कि ये सारा कुछ कैसे प्री प्लान तरीके से हुआ था और कैसे इनके बारे में जिसको भी पता है वो इसको जाके कन्फर्म भी कर सकता है वहां से। तो 1947 की जो मारकाट में आर्य समाज की भूमिका, जस्टिस सैयद आसिफ शाहकार जो पाकिस्तान मूल के हैं और इस समय स्वीडन में है, जब ये राइटिंग्स लिखी जा रही थी 2012 और वहां पे तब की बात वो कर रहा है बंदा ने 19 सितंबर 2012 को राष्ट्रीय हिंदी दैनिक पंजाब केसरी अखबार पानीपत हरियाणा संस्करण में लिखा है, भारत के बंटवारे में से पहले पंजाबी मुसलमान फिर भी पंजाबी ही था। वह बतौर पंजाबी हिंदुओं सिखों की तरह पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के झंडे तले इकट्ठे थे। मतलब जितने भी सिख, हिंदू और मुस्लिम थे वो यूनियनिस्ट पार्टी के एक ही झंडे तले इकट्ठे थे। ना तो वह हिंदुस्तान की तकसीम चाहता था और ना ही पंजाब की। जो भारत है आज का, पाकिस्तान का जो पंजाबी मुस्लिम था वो कभी भी इसको बांटना नहीं चाहता था। ना पंजाब का सिख बांटना चाहता था और ना ही पंजाब का हिंदू बांटना चाहता था। ना तो वह जैसे एक मुर्गी अपने पैरों में चूजे को छुपाकर उसको चीलों से बचाती है, उसी तरह सर छोटू राम सब पंजाबियों को बांटू और भ्रष्ट मजहब की चीजों से बचाकर बैठे थे। ये हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि कैसे उन्होंने पंजाब पर हो रहे ये बाहरी हमलों, जिसमें गांधी था, मूल शंकर तिवारी था, मोहम्मद अली जिन्ना था, अल्लामा इकबाल था और भी बहुत से ऐसे लोग जो आकर पंजाब की धरती में ये गंदगी फैला रहे थे, उनसे कैसे सर छोटू राम जैसे जो दूर अंदेश लीडर थे वो बचा के बैठे हुए थे। तो इसलिए मैं दोबारा आप लोगों के लिए पढ़ दूं। जैसे एक मुर्गी, क्योंकि मुर्गी जब छोटे छोटे उसके बच्चे हैं तो कभी सांप भी उसकी बिल में घुस आए तो वो उसको डिफेंड करती है, अपने पंखों के नीचे, अपने पंजों के नीचे उनको छुपा के रखती है ताकि उन पर आंच ना आए। तो जैसे एक मुर्गी अपने पैरों में चूजों को छुपाकर उनको चीलों से बचाती है, उसी तरह सर छोटू राम सब पंजाबियों, मतलब कि जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आज का पंजाब और जो हरियाणा, इन सब पंजाबियों को बांटू और भ्रष्ट मजहब की चीजों से बचाकर बैठा था। इसमें कोई हिंदू, कोई सिख और मुसलमान था, सब पंजाबी थे। जब बाकी हिंदुस्तान में लोगों को मजहब के नाम पर बांटा जा रहा था, उस वक्त पंजाब में सर छोटू राम की वजह से पंजाबी अब तक भी इकट्ठे थे। तो जब सारा भारत फिरकू प्रस्त हो चुका था, धर्म की वजह से एक दूसरे को मारना काटना चाह रहा था, पंजाब में तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तब भी पंजाबी ये सब कह रहे थे कि हमने इकट्ठे रहना है। सर छोटू राम के मरने
9 जनवरी 1945, मतलब आज से 2 दिन पहले, आज 11 जनवरी है, उनकी मौत 9 जनवरी 1945 को अचानक हुई थी। के बाद यह पार्टी नाइतफाकी और टूट-फूट का शिकार हो गई, जिससे कांग्रेस, अकाली दल और मुस्लिम लीग को मौका मिल गया और उन्होंने पंजाबियों को मजहब के नाम पर बांटना शुरू कर दिया। मेरा यह दावा है कि अगर सर छोटू राम जिंदा रहते तो आज हिंदुस्तान जिसको कह रहा है, या भारत और पाकिस्तान का नक्शा और होता, ना 10 लाख पंजाबी मरते और ना ही 4 करोड़ पंजाबी उजड़ कर जाते। इस नक्शे में पंजाब एक होना था। ये बिल्कुल बात सही कही गई है, क्योंकि जब पाकिस्तान बनने की बात हुई थी तो पंजाबियों ने उसके लिए वोट नहीं किया था। बहुत सारे लोग नहीं जानते, पर इसकी वोटिंग यूपी और उस तरफ के इलाके में हुई थी। वहां की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान मांगा था, तो बेसिकली यूपी या उस तरफ डिवाइड होना चाहिए था, पंजाब में और बंगाल में डिवाइड नहीं होना चाहिए था। पर चूंकि ये दोनों कौमें इकट्ठी थी, ब्राह्मण बनियों को, चाहे वो मुस्लिम हो चुके थे, चाहे वो अभी भी ब्राह्मण बैठे थे, इनको, इन लोगों को शिकार करने के लिए इन दोनों समाजों को बांटना बहुत जरूरी था। और जो हुआ भी, भारत अथवा पंजाब के इस विभाजन में जबरदस्त मारकाट हुई। इस मारकाट में सर छोटू राम, सर फजले हुसैन और महाराजा रणजीत सिंह का पंजाबी आपसी भाईचारे की विरासत से बहुत दूर निकल गया, जो आज तक पंजाब में नहीं हुआ था। कि लोगों ने लोगों को नहीं कभी काटा था, हमेशा रियासत ने लोगों को काटा था। ये पहली बार हुआ था कि 1947 में मुस्लिम ने सिख को, सिख ने मुस्लिम को, हिंदू ने मुस्लिम को और मुस्लिम ने हिंदू को, सबको काटा था एक दूसरे को। तो जो महाराजा रंजीत सिंह का राज था, जहां पर मुस्लिम भी रह रहे थे, हिंदू भी रह रहे थे और सिख भी रह रहे थे, वो पंजाब फजले हुसैन जो कि एक राजपूत मुस्लिम थे उनका, और सर छोटू राम जो कि एक जाट थे उनका, जो ये पंजाब था वो अपनी जो मूल भावना थी उससे बहुत दूर निकल गया था। क्योंकि तब रेप हुए, कत्लेआम हुआ, और सबसे ज्यादा कत्लेआम यहीं पर हुआ। 10 लाख के करीब पंजाबी मारे गए थे, जिसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और हिंदू भी हैं। 1947 में शुरू हुई मारकाट में आर्य समाज ने केंद्रीय भूमिका निभानी शुरू की। तो बहुत ध्यान से सुनना है ये, कि इस सब की शरारत शुरू कहां से होती है। 1947 में शुरू हुई मारकाट में आर्य समाज ने केंद्रीय भूमिका निभानी शुरू की। उन्होंने मुसलमानों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। यह भी नहीं देखा गया कि मजहब के जुनून में वे जिन मुसलमानों को मार रहे हैं वह इन्हीं के सगी भाई थे। तो जो जाट हो चुके थे हरियाणा के मुस्लिम, उनको इन ब्राह्मण बनियों ने उनके ही जाट हिंदुओं से कटवाना शुरू किया। और ये कहां से आता है? सुभाषनी, सुभाषनी जो के जिसके फादर साहब उस वक्त गुरुकुल के अध्यक्ष थे, मतलब के आर्य समाजी थे। उसने जो उसने जो एक किताब में हवाले दिए हैं इस लड़की ने, सुभाषनी आर्या ने, उससे आते हैं, जो इन्होंने नौनिका दत्ता जो लेखक थी उनको दिए थे, कि द रेंजर्स बिलोंग टू अवर गॉड ओनली द at the time of Ghazni they had converted to Islam. They were originally Maliks or Gatwals, though I don't know how many generations ago. Page 77, रांगड़ मलिक गोत्री जाट थे, जो मुस्लिम मलिक गोत्र के जाट थे उनको काटना शुरू किया। गठवाल्स थे उनको काटना शुरू किया। हालांकि वो लिखती है कि ये तो हमारा ही खून था, जो गजनी या उसके बाद में इस्लाम में गए थे, पर पता नहीं कितनी जनरेशन पहले चले गए थे, पर ये तो हमारा ही खून था। तो इनको कैसे हमारे बाप दादाओं ने काटना शुरू किया, जबकि हम तो एक ही थे, खून एक था, पर धर्म दो हो चुके थे। बेशक इन मुसलमानों ने इस्लाम अपना लिया था, लेकिन इन्होंने अपने गोत्र नहीं छोड़े थे। गोत्र छोड़कर शादी करना नहीं छोड़ा था। और आज भी हालांकि उनमें इस्लाम में गए बरसों हो चुके हैं, वो अपने समाज से बाहर शादी नहीं कर रहे। ये चीज आप कंफर्म पाकिस्तान से कर सकते हैं। खाप पंचायतों में विश्वास रखना नहीं छोड़ा था। वो तब भी, ये 47 की बात हो रही, तब भी खाप पंचायतों में यकीन रखते थे, उनमें अपने फैसले करवाने के लिए आते थे, हालांकि वो इस्लाम में जा चुके थे। हल चलाना नहीं छोड़ा था। जाट
को जाट गुज्जर कौम की कौम प्रस्ती नहीं छोड़ी थी, बल्कि इनका आज भी अपने खून पर भरोसा था। ये आज भी सर छोटू राम जिंदाबाद, कानी मंडी मुर्दाबाद। तो जो मंडी में बैठे इस्लामिक या हिंदू लोग थे, जैसे मैंने पहले बताया, मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो खुद बनिया था और गांधी भी बनिया था। इनके खिलाफ जब वो नारे लगाया करते थे मुस्लिम, तो वो ये कहा करते थे कि सर छोटू छोटू राम जिंदाबाद। तो उनको पता था कि ये बंदा हमारा अच्छा चाहने वाला है, हम इससे अलग नहीं है। पर ये क्या हो गया कि अचानक एकदम से ये जो आर्य समाजी हो चुके जाटों ने उन्हीं मलिक्स को, उन्हीं गठवालों को काटना शुरू कर दिया। बेशक इन्होंने इस्लाम अपना लिया था, लेकिन आज भी इनके घरों में गोगा पीर और बाबा गोरखनाथ के किस्से सुनाए जाते थे। मेरे 99 वर्षीय नाना चौधरी रिसाल सिंह तलहन, ये जो राइटर है उनके नाना थे, क्योंकि मेरे पास 2-3 किताबें खुली हुई हैं, तो ये जो किताब लिख रहे हैं, इनमें इनके चार जो नाना थे, रिसाल सिंह तलहन ने मुझे बताया कि मुसलमान जबान के पक्के हुआ करते थे, क्योंकि ये एक ही खून था। कोई इस्लाम में चला गया था, कुछ हिंदू बनाने की कोशिश हो रही थी ब्राह्मणों की तरफ से आर्या बना के, कुछ सिक्खी में चले गए थे, पर खून एक था। और एक ही गांव में दो दो तीन धर्म पर एक ही बरादरी रह रही थी। तो ये इस लेखक के नाना चौधरी रिसाल सिंह तलहन ने बताया कि मुसलमान जबान के पक्के हुआ करते थे, वफादार हुआ करते, यारों के यार और ईमानदार हुआ करते थे। अगर गांव में किसी व्यक्ति को साफ परिवार कहीं जाना पड़ जाया करता था, तो वह गांव के किसी मुसलमान को ही अपनी औरतों की टूम ठोकरी, मतलब गहने, ये हरियाणा की भाषा है टूम ठोकरी के, और कीमती सामान देकर जाया करते थे, जिससे उस सामान की हिफाजत हो सके। तो बेसिकली वो एक ही बिरादरी थी, जिसमें से कुछ लोग इस्लाम में चले गए थे, कुछ लोग ब्राह्मणों के बताए आर्य समाजी हो रहे थे, और कुछ लोग सिक्खी में चले गए थे। पर उनका जो कबीला या खानदान एक ही था, तो एक दूसरे पर वो विश्वास करते, एक दूसरे पर अपना जो कीमती सामान हुआ करता था वो एक दूसरे को देकर जाया करते थे। मेरे नाना ने मुझे बताया करते थे कि मुसलमान अच्छे हुआ करते थे, लेकिन सन 1947 में आर्य समाजियों ने इन अच्छे लोगों को मारा। इन्हें ही गोती बाइयों को इन्हों अपने ही गोती बाइयों, मतलब के मलिकों ने मलिकों को मारा, गठवालों ने गठवालों को मारा। सुभाषिनी सुभाषिनी जो कि भक्त फूल सिंह, जो भक्त फूल सिंह की बेटी है और आर्या है, मेरे ख्याल से वो कनाडा में रहती हैं कहीं, उन्होंने ये सारा बातें अपने फादर जो फूल सिंह, वो भी मलिक गोत्र के जाट थे, जो एक गुरुकुल चलाया करते थे, उनकी सुनी बातों से उसने ये सारी इंटरव्यू दी थी नोनिका दत्ता को। और रांगड़ भी मलिक थे। किस लिए मारा? तर्क यह है कि इन अच्छे लोगों के मजहबी भाई पश्चिमी पंजाब में हिंदुओं को मार रहे थे। क्यों उनको मारना शुरू किया इन्होंने? क्योंकि इन्हें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि ये जो मुसलमान हैं, इनके धर्मी भाइयों, मतलब कि दूसरे मुसलमान पंजाब में वहां पर हिंदुओं को मार रहे हैं, तो इसलिए इनको भी मारो। इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे थे और हिंदुओं की लाशों को रेलगाड़ियां भर भर कर इधर से उधर आ रही थी। लेकिन सवाल यह भी है कि जिन हिंदुओं को मारा जा रहा था वो हिंदू किस जाति के थे? क्या वे जाट गुज्जर थे? नहीं, क्योंकि पश्चिमी पंजाब का सारा जाट गुज्जर मुसलमान बन चुका था। ज्यादातर जो पंजाब का पश्चिमी एरिया, ये सियालकोट से ऊपर, जहां तो वो सिख बन चुके थे, जहां वो जितना भी जाट गुज्जर समाज था, जहां वो सिख बन गए थे और जहां वो मुसलमान हो चुके थे, तो वो किसको मार रहे थे? नोट करें कि ये सभी हिंदू जिन्हें मारा जा रहा था उस गोपी चंद नारंग की ही जाति से थे, जिसने पंजाब असेंबली में लाहौर में सन 1938 में पंजाब कृषि उत्पादन मार्केट एक्ट पर हुए बहस में बोलते हुए कहा था कि इस कानून से गांव का 2 डेले का जाट शहरी अरोड़ा के साथ बैठेगा। तो एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हिंदू अरोड़ा थे वो आजकल खत्री समाज में घुस रहे हैं, खुद को खत्री कहते हैं, पर ऐसा है नहीं। बहुत ही समझने वाली बात है। ये हो क्यों रहा है? जैसे गांधी ने आके सारी साजिश बना दी, तो ये जो बंदा था गोपी चंद नारंग, जो कि वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जब पंजाब गोरों के अंग्रेजों के अधीन था, तो पंजाब
बाय इटसेल्फ एक कंट्री थी, वहाँ का पीएम हुआ करता था, उसके अंदर ये एमपी था। तो जब सर छोटू राम ये मार्केट एक्ट लेके आए थे, कृषि उत्पादन मार्केट एक्ट, जिसमें किसानों की जमीन कुर्क नहीं की जा सकती थी और बहुत से ऐसे लेके आए थे, तो इन सब पर बहस करते हुए इसी नारंग ने ये कहा था कि गांव का, और स्पेशली ये सर छोटू राम के लिए बेसिकली उसने शब्द यूज किए थे, क्योंकि वो, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका असल नाम रिशपाल था, रिशपाल सिंह था इनका नाम, पर आर्य समाजी हो जाने की वजह से इनका जो नाम था, इनको छोटू डिग्रेड करने के लिए जितने भी ये नारंग फरंग थे, ये इनको छोटू बुलाया करते थे। तो इन्होंने अपने नाम के साथ राम लगा लिया था, छोटू राम, और सर की बाद में इनको उपाधि मिलती है, तो फिर इनका नाम हुआ सर छोटू राम, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो मशहूर थे, वकील थे, पढ़ लिख गए थे, तो लोग जानबूझ के इनको डिग्रेड करने के लिए ये ब्राह्मण बनिए, इनको छोटू बुलाया करते थे। तो ये उनका नाम भी है, असल नाम उनका रशपाल है। तो इनको टारगेट करते हो, क्योंकि ये बिल लेके आए थे, सर छोटू राम वो बिल लेके आए थे। तो यही नारंग ने कहा था कि गांव का 2 देले का जाट, और स्पेशली उन्होंने कहा था रोहतक का 2 देले का जाट अब शहरी अरोड़ा के साथ बैठेगा। ये सभी हिंदुओं जिन्होंने मारा जा रहा था, पंजाब के यहूदी थे, ये इतने बड़े सूदखोर और अय्याश थे कि पंजाब में गरीब आदमी अपने घरों में इनके पेशाब से दिए जलाया करता था। ये वे लोग थे जो सर छोटू राम के जनाजे निकालते थे और कहते थे, ये सुनने वाली बात है कि जब सर छोटू राम एमपी थे, तो ये लोग उनके जनाजे, मतलब उनकी अर्थियां, नकली जो अर्थियां जैसे आजकल मोदी की फूकी जा रही हैं, तो इसकी सर छोटू राम, क्योंकि वो किसानों के लिए बहुत काम कर रहे थे, तो ये शहरों में उसकी अर्थियां निकाला करते थे। और क्या क्या करते थे, सिकंदर हयात टिवाणा जो थे, क्योंकि उन्होंने सर छोटू राम के साथ मिलकर ये सारा निकाला था कि सर सिकंदर वड्डा कंजर, सर छोटू राम, सर सिकंदर वड्डा कंजर, तो इनको टारगेट किया करते थे कि ये एमपी कैसे बन गए और कैसे किसान कबीलाइयों के हक की बात करते हैं। लेकिन दुखद बात यह रही कि हरियाणा क्षेत्र के जाटों ने आर्य समाज के बहकावे में आकर इनकी मौत को हिंदू अस्मिता का सवाल बना दिया, जबकि छोटू राम का कहा करते थे, जाट का हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। ये सुनने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो किया करते थे कि जाट का हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। सर छोटू राम का कहना था, यह था कि जाटों को हिंदू के नारे से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह नारा शहरी वर्ग को फायदा पहुंचाने वाला नारा है, परंतु बिल्कुल वैसा ही जैसे मुसलमानों का ये जो नारा था, ये जो मोहम्मद अली जिन्ना ने लगाया था, ये शहरी वर्ग के लिए था, शहरी वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए लगाया गया था, जिसका प्रभाव आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी पंजाब की जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी या सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी अपनी मातृभाषा या मादरे जबान पंजाबी है, उसको तोड़कर उर्दू ने कब्जा कर लिया है। तो बेसिकली गांधी द्वारा लगाया गया ये हिंदू का नारा, आर्य समाज द्वारा लगाया गया ये हिंदू का नारा, और मुसलमानों के मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा लगाया गया मुसलमानों का नारा, बेसिकली इन ब्राह्मण बनिया कौम को फायदा पहुंचाने के लिए लगाया जा रहा था। ये सर छोटू राम और सिकंदर हयात और बहुत से और लोग समझ चुके थे, पर ये जो बेसिक उनका समाज था वो ये बात नहीं समझ पा रहा था। सवाल है कि अगर उपरोक्त भूमिका उल्ट होती तो क्या होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है उनका। सर छोटू राम की शिक्षाओं के विपरीत चलकर हरियाणा का आर्य समाजी जाट पूरी तरह भावुक हो गया और हिंदुत्ववाद के भावुकता में शहरी हिंदू हिंदू अरोड़ा के, जहाँ शहरी ब्राह्मण बनियों के का बदला वो देहाती, देखे शहरों के लोग एक दूसरे को दोनों तरफ काट मार रहे थे, पर इसमें बड़ा बदलाव तब आया जब आर्य समाज के प्रभाव से प्रभावित होकर हरियाणा के आर्य समाजी हो चुके जाटों ने इन शहरियों, जैसे उधर दोनों शहरों में जंग चल रही थी, मुसलमान शहरी हिंदू शहरियों को और हिंदू शहरी मुसलमान को वो आपस में नफरत करते थे, एक दूसरे को मार रहे थे। पर आर्य समाज के बहकावे में आके जो गांव के जाट थे आर्य समाजी,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांवों में काट फांट शुरू कर दी। अब सवाल है यहाँ पर ये किया जाता है, सवाल है कि अगर अप्रोतक भूमिका उल्ट होती, कि अगर जाटों को मुसलमान मार रहे होते तो क्या ये जो हिंदू ब्राह्मण बनिया है उनकी डिफेंस पे आते? तो राइटर लिखता है कि बिल्कुल नहीं आते। अगर जाटों की जगह पर हिंदुओं होते और हिंदुओं की जगह पर बेसिकली हिंदू इनको कह रहे हैं जो ब्राह्मणों के गुलाम ऊपरी क्लास अपर क्लास हिंदू ब्राह्मण बनिया है, उनको कह रहे हैं की जगह पर जाट होते या गुजर होते और जिस तरह से मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे उसी तरह से वे जाटों को मार रहे होते, तो क्या इस स्थिति में ये हिंदू ब्राह्मण बनिए भी हिंदुत्व के नाम पर जाटों का बदला मुसलमानों से लेते? जैसे आर्य समाजी हो चुके जाटों ने हिंदुओं का बदला लेने के लिए अपने भाइयों को मारा, क्या ये ब्राह्मण बनिया हो चुके लोग भी करते? बिल्कुल नहीं करते। उसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना आजादी के बाद इधर रह गया था। ये जो डालमिया परिवार है जिसको आज बेच दिया गया है लाल किला, ये खुद उसको अपने प्लेन में बैठा के आया था। याद रखना होगा। अगर वाकई इनकी बनियों की आपस में भी उतनी दुश्मनी होती हिंदू मुस्लिम की, तो इसने उसको क्यों नहीं मारा? ये तो वहां पर फंस गया था। मोहम्मद अली जिना जो था उसको ये जो डालमिया है ये खुद प्लेन में बिठा के आया है। इनको किसी को नहीं मारा गया, पर मारा मरवाया किसको गया? छोटे गांव को। फिर उससे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, वो समझने वाली बात है। 10 लाख 1 लाख भी उसमें ब्राह्मण बनिया नहीं मरा होगा, 9 लाख प्लस उसमें आम लोग जिनको 84 में भी मारा गया, 2016 में भी मारा गया, 2008 में भी मारा गया, वही लोग थे जिनको तब मारा गया था। हुआ कैसे सारा, ध्यान से सुने प्लीज। हिंदुत्व के नाम पर बावक होने का सवाल तो कोसों दूर तक भी नहीं है। इनकी मानसिकता तो यह है कि एक बार एक बनिए के घर में सांप घुस गया तो बनिए ने सांप सांप चिल्लाना शुरू किया। जब बनिए की मदद के लिए चिल्लाते हुए पड़ोसी जाट ने सुना तो यह जाट उस बनिए की मदद में हाथ में लठ लेकर सांप को मारने के लिए बनिए के घर में घुस गया। जैसे ही यह जाट बनिए के घर में घुसा, बनिए ने बाहर से दरवाजे की कुंडी मार दी। जो बनिए की वाइफ है, घरवाली ने बनिए से पूछा कि आपने यह क्या किया, कुंडी क्यों मार दी? तो बनिए ने हंसकर जवाब दिया कि भगवान दोनों हमारे दुश्मन हैं, सांप भी हमारा दुश्मन है और जाट भी हमारा दुश्मन है, एक तो मरेगा ही। अब ये राइटर ने लिखा है और ये बिल्कुल सच बात है कि बिल्कुल उनकी सोचनी ऐसी थी। कभी भी ब्राह्मण बनिए अगर इसी तरह पाकिस्तान में जाटों को मारा जा रहा था, गुजरों को मारा जा रहा था, जहां किसी ट्राइबल को मारा जा रहा होता, तो ब्राह्मण बनिए कभी भी रिस्क नहीं लेते और दूसरे ब्राह्मण बनियों को कभी नहीं मारते। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। मोहम्मद अली जिन्ना को इस देश से सुरक्षित निकालने वाला डालमिया था। ऐसे ही दोनों तरफ के जो मुस्लिम हो चुके ब्राह्मण हैं या बनिए हैं, उन्होंने भी अपने ब्राह्मण बनियों को सेफली हिंदुस्तान निकाला। इसकी भी हमारे पास एग्जाम्पलें हैं। ये जो जितने भी लामा इकबाल जैसे लोग हैं, उनको उनके ही ब्राह्मण बनियों ने कैसे सेफ निकाला, पर 9.5 लाख के करीब जाट गुज्जर सैनी कंबोज लबानों को कैसे मरवाया आपस में, ये सारा सीक्रेट जो है ये बुक आगे खोलती है। मेरे पास तीनों किताबें हैं, मैं धीरे धीरे उनको बीच बीच में सभी को पढ़ूंगा ताकि आप समझ सकें। यह मानसिकता ये जो बनिए की मानसिकता बताई है, ये मानसिकता इन बनियों की है। अगर मुसलमान हमारी लाशों की रेलगाड़ियां भरकर बेचता तो ये लोग दिवाली मनाते। यहां तक उसने लिखा है कि अगर जाटों गुजरों सैनियों कंबोजों लबानों खत्रियों की गाड़ियां भी भर के वो लोग बेचते, तो ये लोग जो ब्राह्मण और बनिए हैं ये लोग वहां पर दिवाली मनाते। लेकिन यह तो मेरा जाट ही बावला है जो इन यहूदियों को पश्चिमी पंजाब में मारा जा रहा था, तो हरियाणा का जाट हिंदुत्व के नाम पर बदला ले रहा था। आर्या समाजी भगत फूल सिंह जो खुद मलिक गोत्र के जाट थे, उनकी बेटी द्वारा ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और मैं आगे भी इस पे बताऊंगा। सुभाषिनी आर्या, देखें बहुत ध्यान से देखें, उनका नाम था फूल सिंह मलिक।
सिंह शब्द जो है ये जाटों में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की देन है, उससे पहले सिंह शब्द नहीं था। फूल सिंह मलिक की बेटी का नाम है सुभाषिनी आर्या। तो देखिए कैसे इन्होंने सिखों को टारगेट करके किया था। और अब सुने, आर्या समाजी भगत फूल सिंह जिन्होंने खानपुर कन्या गुरुकुल की स्थापना की थी कि पुत्री सुभाषिनी के संपर्क में रहकर उनके द्वारा बताई गई बातों के आधार पर नोनिका दत्ता ने उनकी जीवनी लिखी है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से वायलेंस मार्टिरडम एंड पार्टीशन डॉटर्स टेस्टिमोनी, ये किताब 235 पुष्टों की किताब 2009 में छपी है। ये भी पढ़ सकते हैं आप। जितनी भी मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ वो इन सब किताबों से है, जो लोगों की एक्चुअल में जिन लोगों ने इन चीज़ों को देखा समझा या उनके बुजुर्गों ने समझा, वहां से उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। इस किताब का दूसरा संस्करण जो है वो 2010 में छपता है। इस किताब में सुभाषिनी आर्या, देखें बहुत ध्यान से देखें क्या हुआ, किया क्या गया। फूल सिंह 1885 में पैदा हुए थे, तो उनका नाम था फूल सिंह मलिक, पर अब उनकी बेटी का नाम हो चुका है सुभाषिनी आर्या। सुभाषिनी आर्या ने यह गवाही कि 1947 में आर्या समाजियों ने किस बेरहमी से मुसलमानों को मारा था। सुभाषिनी ने कहा है, डू यू नो व्हाट दे डिड? These Jats did not have brood or top, but they set the entire village of Putni, Puthi on fire with Teja. As the Havelis caught on fire, massive smoke covered the entire village. Those who were hiding in the Havelis could not do a thing, even if they possessed weapon. तो इस लड़की ने ये कहा है कि जो पुथी नाम के पुथी नाम का शहर गांव था, सारे का सारा मुसलमानों का शहर इन आर्य समाजियों ने आग लगा दी। अगर उस गांव में लोगों के पास हथियार होते तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। जितनी भी हवेलियां थी मुसलमान जाटों की, वो इस आर्य समाजियों ने जला दी। नॉट अ सिंगल विलेज वाज स्पेयर्ड। जितने गांव थे उसमें से कोई भी नहीं छोड़ा गया। आगे वो कहती है गांव ही फूक दिए, विलेजेस वर सेट ऑन फायर। गुरुकुल भैंसवाल वाज एट द फोर फ्रंट ऑफ स्लैटरिंग द मुसलमान्स। तो ये जो गुरुकुल बनवाए थे आर्य समाजियों ने जाटों से, ये इसी दिन के लिए बनवाए थे और बिल्कुल उनसे काम लिया गया। ये जो सुभाषिनी है, इसके फादर भी एक गुरुकुल चला रहे थे। वो कहां पर था? खानपुर कन्या गुरुकुल, जो फूल सिंह मलिक ने बनाया था, उन्होंने भी किया। गुरुकुल भैंसवाल, जो भैंसवाल गांव का गुरुकुल था, वो सबसे आगे था मुसलमानों को मारने के लिए। गुरुकुल बैंक भैंसवाल हैड ऑलवेज बीन फुली इक्विप्ड विद वेपन्स। तो ये गुरुकुल में पहले से ही हथियार पड़े रहते थे, जो आज भी वही ट्रेंड है। अगर आरएसएस को देखें तो आप उस सारे ट्रेंड को समझ जाएंगे कि कैसे ट्रेनिंग, कैसे हथियार, कैसे मन में लोगों की नफरत भरी जा रही है। बिल्कुल वही स्ट्रेटजी आर्य समाज की आज बड़े लेवल पे की जा रही है। Gurukul Banswal had always been fully equipped with weapons. पिताजी had distributed them to one and all. वो अपने फादर साहब के बारे में बताती हुई कहती कि मेरे फादर साहब ने उनको हथियार दिए थे। There was not a single person who didn't have a weapon. वो कहती कि वहां पर कोई भी ऐसा आदमी था जिसके पास हथियार नहीं थे। Everybody was armed. सभी हथियारबंद थे। The the brahmacharis performed all kind of chores like supplying courage, giving encouragement to those who are preparing to attack Muslims, urging them not to lose heart. जो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी का क्या कंसेप्ट था जाट समाज में, ये क्यों लाया गया था? ब्राह्मण बनिया खुद ब्रह्मचारी नहीं बन रहा था, पर जाटों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उनको ये एक चूनी लगा दी गई थी कि तुम लोग ब्रह्मचारी बनो, मतलब कि तुम लोग शादी मत करो, आगे बच्चे मत बनाओ। जबकि ब्राह्मण बनिया खुद बन नहीं रहे थे ब्रह्मचारी, पर इनको आर्य समाज के थ्रू ब्रह्मचारी बनाया। और इन ब्रह्मचारियों का काम क्या था? लोगों को कार्ट्रिज, जो गोली सिक्का, वो प्रोवाइड करना, प्लस मुसलमानों को मारने के लिए उत्साहित करना, प्लस उन्हें बोलना कि दिल मत छोड़ो, इनको छोड़ो मत। Among them, some provided weapons, some performed the physical work, some brought food. Suppose you collect cartridges from some purpose, they got finished. In that situation, your enemies are bound to kill you. तो ये सारा सिस्टम आर्य समाजियों द्वारा जाटों के बच्चों को जाटों के खिलाफ
जाटों से ही मरवाया जा रहा था, दोनों तरफ से। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना जो कि खुद बनिया था वो था, दूसरी तरफ बनिया जो था महात्मा गांधी वो था। वोटिंग यूपी में होती है, बांटा पंजाब जाता है 10 लाख के करीब, जिसमें से मात्र 50,000 के करीब ब्राह्मण बनिए थे। 9.5 लाख कबीलाइयों को मरवाया गया एक दूसरे के हाथों से। अब ध्यान से सुन लें आप, एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना एंड उसकी टीम ये काम कर रही थी, दूसरे तरफ गांधी मूल शंकर तमारी के ये आर्य समाजी प्रॉपरली हथियारबंद होके जाटों के गांव जला रहे थे, और वही काम मोहम्मद अली जिन्ना की टीम पाकिस्तान में कर रही थी, पर खुद ब्राह्मण बनिए मिले हुए थे। सबूत मैंने दे दिया आपको। मोहम्मद अली जिन्ना को उसके प्लेन में सेफली चढ़ा के आने वाला ये डालमिया था, जिसको आज ताजमहल दिया हुआ है, वो नहीं निकल सकता था। अगर असल में दंगे हुए होते तो मोहम्मद अली जिन्ना बच के नहीं निकल सकता था इस देश से, पर उसको निकालने वाला उसका ही बनिया भाई डालमिया था, समझना चाहिए। मुसलमान हो चुके ब्राह्मण और बनियों ने अपने ब्राह्मण बनी भाइयों को प्लेनों में ट्रेनों में निकाला, पर कबीलाइयों ने अब इनके बहकावे में आकर अपने बहन भाई किसी को जाने नहीं दिया, जहां उनको मारा लूटा जलाया गया। ये सबूतों के तहत जो वो भगत फूल सिंह मलिक जो आर्या हो चुके थे, जो खानपुर कन्या गुरुकुल चलाते थे, उनकी बेटी सुभाषिनी आर्या ने अपनी टेस्टमोनीज में दिया है। क्या है वो? वायलेंस, मार्टरडम एंड पार्टीशन, अ डॉटर्स टेस्टमनी। इसमें इस किताब में स्पेशली जो है 2009 और 10 में प्रिंटिंग हुई है, इन पर भी और पुरानी भी हमारे पास किताबें पड़ी हुई है, तो उनको पढ़ के हमें सारा पता चल जाएगा कि ये सारा षड्यंत्र क्या था। It was therefore necessary to ensure a full supply of cartridges. असला पूरा होना चाहिए, ये गुरुकुल सप्लाई कर रहे थे। So arrangements were made. People from गुरुकुल चज्जर जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहां के गुरुकुल came to my assistance. भगवान देव जी, for instance, gave me 20 kilo of cartridges. जो इसका बाप था भगत फूल सिंह, इसको 20 किलो गोली सिक्का किसने दिया था? के भगवान देव जी जो गुरुकुल चज्जर से थे, उन्होंने लाके दिया। दिस वॉज द टाइम ऑफ मुसलमान, वो मुसलमानों का जमाना था। तो क्या अब छोड़ना नहीं है इन मुसलमानों को? ये सुभाषिनी आर्य द्वारा दी गई हुई इंटरव्यू, नौनिका दत्ता की किताब के पेज नंबर 69 70 में पूरा डिटेल के किस गुरुकुल से क्या क्या आया था। ये आग आज के पंजाब में सबसे बाद में फैली है। पहले ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा और गांधी और मूल शंकर द्वारी के इन आर्य समाजियों द्वारा, पूरे ब्राह्मण बनियों के गैंग के द्वारा, ये झज्जर हरियाणा जो आज का झज्जर है, ये खानपुर हो गया, ये सारी जगह पहले, प्लस उधर जो मोहम्मद अली जिन्ना का गिरोह था, दोनों तरफ से फैल गई थी। बाद में जो इसकी अंत हुआ है वो 9.5 लाख के करीब मुसलमान जाट, गुज्जर सैनी, सिख जाट गुज्जर सैनी, लुबानी कंबोज, हिंदू जाट सैनी गुज्जर कंबोज, ये सब मारे गए थे इसमें। जबकि ब्राह्मण बनिए अपने भाइयों को, हालांकि वो दूसरे धर्म के थे, उनको प्लेनों में ट्रेनों में निकाल रहे थे, पर जो कबीलाई समाज था उसने किसी को जाने नहीं दिया। जो उनके हत्थे चढ़ा, अपनी ही बहनों से रेप कर दिए, अपनी ही बहनों को मार डाला। इतना अंधकार में चले गए कि उन्होंने गांव के गांव दोनों तरफ से जला दिए। पाकिस्तान जो आज का, वहां पर भी जो हरियाणा है आज का भी, और एंड फिर पंजाब में तो आपको पता ही है क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अर्थात क्या तुम जानते हो कि उन्होंने क्या किया? इन जाटों के पास बारूद और तोप नहीं थे, परंतु इन्होंने सारे पुट्ठी गांवों को तेजाब के साथ आग के हवाले कर दिया। जो हवेलियों के भीतर थे वो अगर हथियारबंद होते तब भी कुछ नहीं कर पाते। तो दोनों तरफ प्रॉपर ब्राह्मण बनियों ने पहले ही तैयारी कर ली थी। और जितने भी ये जाट समाज के लोग हैं,
और गुजर समाज के लोग हैं, सैनिक, क्योंकि आज ये जो चैप्टर हम 15 चलाएंगे ये ज्यादातर जाट समाज के हैं, पर यही स्टोरी गुजरों की है, यही सैनियों की है, यही कंबोजों की है, यही खत्रियों की, यही तरखानों की, यही तेलियों की, सबकी कहानी एक जैसी है। पर आज क्योंकि हम ये 15 जो कोर्स करने जा रहे हैं, 15 सेशन लगाने जा और जाट समाज पर लगाने जा रहे हैं, तो अगर मैं जाट की बात करूं तो आप समझ लें कि दूसरे कबीले की बात भी ऐसी ही है। तो इन्होंने एक भी काम नहीं छोड़ा, सबके सबको आग लगा दी। मुसलमानों को मारने में गुरुकुल भैंसवाल सबसे आगे था। गुरुकुल भैंसवाल सदैव हथियारों से पूर्णतः लैस रहता था। इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हथियारबंद न हो, हर एक व्यक्ति हथियारबंद था। ब्रह्मचारी सभी प्रकार की व्यवस्था संभाल रहे थे, जैसे कारतूस सप्लाई करना, उन लोगों की हौसला अफजाई करना जो मुसलमानों पर हमले की तैयारी कर रहे थे कि कहीं उनके हौसले कमजोर ना पड़ जाए। उनमें से कुछ को हथियार प्रदान कर रहे थे, कुछ कार सेवा कर रहे थे, कुछ खाने की व्यवस्था कर रहे थे। मानो कि अगर किसी मकसद से कारतूस इकट्ठे किए गए हों, वे खत्म हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपका दुश्मन आपको मार डालेगा। अब यह जरूरी था कि कारतूसों की फुल सप्लाई की जाए, अंत पूरी तैयारियां की जाएं। कई गुरुकुल झज्जर के लोग मेरी सहायता को आए, जैसा कि भगवान देव जी ने मुझे 20 किलो कारतूस दिए। वे गुरुकुल झज्जर के प्रमुख थे। उन दिनों कारतूस काफी लंबे हुआ करते थे। वह मुसलमानों का जमाना था। ये मैंने सारी जो इंग्लिश में हमने पढ़ी उसकी ट्रांसलेशन करके आपको बता दी। आचार्य भगवान देव जी ने मुझे, इस लेखक को, मतलब कि ये जो बंदा लिख रहा है इसको उसने इंटरव्यू में बताया था, एक इंटरव्यू में बताया था कि इस मारकाट में द्वितीय आरएसएस सर संचालक गुरु गोलवरकर झज्जर गुरुकुल आए थे। तो समझिए कि तारें कहां पर जुड़ रही हैं। आर्य समाजियों के बनाए हुए झज्जर गुरुकुल में आरएसएस का वो गोलवरकर आया था, जिसमें उनकी गुरु गोलवरकर से यह सहमति बनी थी कि वो तो कारतूसों का इंतजाम करेंगे और गोलवरकर बंदूकों का इंतजाम करेंगे। तो ये बेसिकली गांधी, गोलवरकर, जिन्ना और इन सभी लोगों का प्री प्लान था। ये याद रखना होगा, मैं पहले भी दोनों तरफ से सबूत दे चुका हूं कि तीनों जो जब कई बार लेटर लिखने के बाद सर छोटू राम और टिवाणा जो कि मुसलमान थे, दोनों ने लेटर लिखे थे कि ये जो बंदा मोहम्मद अली जिन्ना है, गांधी जी इससे ना मिलें, ये बंदा देश को खराब कर रहा है। पर फिर भी गांधी ने उससे मीटिंगें की और ये पाकिस्तान का सारा नक्शा तैयार किया। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना का गिरोह और दूसरी तरफ आरएसएस के गोलवरकर का गिरोह बंदूकें, कारतूस पहले ही जमा कर रहा था। इनको पहले पता था कि पाकिस्तान बनाना कहां पे है, किसान कबीलाइयों को या बंगालियों को बांटना ही बांटना है, अदरवाइज था ही नहीं। पंजाबियों ने कभी भी वोट नहीं किया था पाकिस्तान के लिए, पंजाबी मुसलमानों ने नहीं वोट किया था। अगर पाकिस्तान बनना था तो ये यूपी में बनना चाहिए था या उस तरफ बनना चाहिए था, पंजाब में नहीं बनना चाहिए था। पर बनाया यहाँ पर गया और गोली असला भी पहले पहुंचता कर दिया गया था ताकि दोनों तरफ से अच्छे से मारकाट हो सके। उन्होंने बताया कि मैंने तो कारतूसों का इंतजाम कर दिया, बंदूकें उसने करनी थी, तारीख मुझे याद नहीं है। उसने कहा ये जो भगवान देव हैं, मरने से पहले इन्होंने एक इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई थी और उन्होंने कहा कि मुझे तारीख नहीं याद, पर मुझे गोलवरकर जब मिलने आया था तो मैंने उसे कहा था कि कारतूसों का इंतजाम हम करेंगे, बंदूकों का इंतजाम तुम कर दो। तो उसने कहा था ठीक है। सदीकी ने अपनी किताब तहरीके पाकिस्तान के अध्याय तहरीके पाकिस्तान रोहतक का किरदार में पुष्ट 180 में पुट्ठी गांव सोनीपत में हुए मुस्लिम नरसंहार का बयान एक मुस्लिम प्रत्यादर्शी के हवाले से किया जो इस प्रकार है। इत्तबाद सदीकी जो कोई तहरीके पाकिस्तान का राइटर था, उसने इस लड़की ने जो जिस गांव के जलने की बात की थी उसकी एक और भी हमें उदाहरण मिली है, वो पाकिस्तान की किताब से आती है। वो कहां से है? 50 चिल्ड्रन एंड वुमेन सर्वाइवर्स वर पुश्ड इनटू ए बस नंबर 40 विच द जाट सेट ऑन द फायर। 40 लोगों को बस में फेंक दिया गया जिसमें बच्चे और औरतें थे जिनको इन जाटों ने आग लगा दी, आर्य समाजी जाटों ने आग लगा दी। दे डिड नॉट अलाउ, और किनको आग लगा दी? जो उनका अपना ही खून का, क्योंकि वो मलिकों और गठवालों का गांव था। पर ऐसा आर्य समाजियों ने उनका दिमाग खराब कर दिया था। जैसे दिल्ली 84 में दिल्ली का नरसंहार करने के लिए भी इन्हीं सबको यूज किया गया, ब्राह्मणों ने इन्हीं को यूज किया
कि भरो ट्राली चलो मारो सिखों को, जबकि वो उनका अपना खून है। अपने खून को अपने खून से बार बार मरवाया गया। पर हमारे इस खून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब जब ब्राह्मण बनिए ने साजिश बनाई या षड्यंत्र बनाया है तो हमने अपना ही खून बहाया है, जबकि ब्राह्मण बनिए का खून कभी भी नहीं बहा, चाहे वो कहीं पे भी छुपा हुआ हो। Many witnesses watched the tamasha. While the bus was moving, a Muslim woman fell into the gutter shouting, "Is there a Muslim who can give me a drop of water?" Uh, from the burning bus, a mother threw her child outside, who was taken by one of the attackers to his house. She was recovered 2-3 days later and sent to the Muslim League office, Rohtak. ये नहीं था कि वहां पर सब बुरे लोग थे, वहां पर अच्छे लोग भी थे। जब लोग ऐसा बसों को आग लगा रहे थे तो एक औरत ने अपना बच्चा बाहर फेंक दिया, जिसको कोई उठा के बाहर ले गया, अपने घर ले गया, जिसको उसने बाद में मुस्लिम रिफ्यूजी कैंप रोहतक में दे दिया। और जो औरत बाहर गिर गई थी उसको भी बाद में रोहतक में बचा के दे दिया गया। गांव में ऐसा नहीं था कि लोग सबसे पर ये आर्य समाजी जो दंगई कर रहे थे उसका शिकार सब हो रहे थे। इस मार्केट में बढ़िया आर्य समाजी दंगइयों को कारतूस और हथियार खरीदने के लिए पैसे दे रहे थे। जो बनिए थे शहर के रोहतक के, वो इन आर्य समाजियों को कारतूस और हथियार खरीदने के लिए पैसे दे रहे थे। बनियाज ऑफर्ड मनी टू बाय कार्ट्रिजेस एंड एनी काइंड अदर काइंड ऑफ वेपन्स। पेज नंबर 180 नानिका दत्ता। ये सारी की सारी जो इंटरव्यूज दी गई हैं वो फूल सिंह आर्या, जो कि खानपुर कन्या गुरुकुल के संस्थापक थे, उनकी पुत्री। मेरे ख्याल से वो अब माइग्रेट करके कनाडा की कहीं आ गई है। मैं कोशिश करूंगा कभी उनसे मिलने की। मैंने पहले भी एक बार सोचा था। सुभाषिनी आर्या द्वारा दी गई यादों में से है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या मेरे पिताजी ने किया, क्या क्या मेरे पिताजी ने बताया था, क्योंकि उनके पिताजी बहुत इन्वॉल्व रहे थे। ही वाज ए बिग टाइम आर्य समाजी, और उन्होंने बहुत से गुरुकुल ये वो संस्थापन करने में हेल्प की थी। हालांकि वो सिख थे एक्चुअली, असल में वो एक टाइम पे सिख थे, पर उनको साजिश के तहत, जैसे मैंने बताया कि 4-5 जो बड़े कबीले थे, कैसे वो मूल शंकर तिवारी आता है, कैसे इनको बहला फुसला के कि तुम सिख मत बनो क्योंकि सिख तुम्हें ऊंचा नहीं करता, क्योंकि सिक्खी का एक प्रिंसिपल है कि सब बराबर हैं। पर सिखों को जाट देवता, जाट जी ऐसे शब्द यूज करके कि तुम तो बड़े हो, तो टेम्परेरली जो क्षत्रिय बनाया था उसकी वजह से आर्या बने जाटों को अब, जो तब भी पता चल गया था, पर अब तो बिल्कुल ही जो समझदार थे, जो समझदार थे सर छोटू राम जैसे लोग, वो तो तब ही पकड़ गए थे, वरना आज तो सब समझ गए हैं कि ये ब्राह्मण बनियों का बुना जाल था आर्य समाज, जिसमें फंसकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान ही करवाया है। गुलवर्कर वर्कर जैसे लोगों के फार्मूलों का वो शिकार हुए हैं। जिस तरह हरियाणा के आर्य समाजी जाट मुसलमानों को मार रहे थे, उसी तरह पंजाब के सिख भी मुसलमानों को मार रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब के देहाती मुसलमान जहां से बर्बाद होकर पाकिस्तान पहुंचा। उसके हालात पर जस्टिस सैयद आसिफ शाह का स्वीडन ने राष्ट्रीय दैनिक हिंदी पंजाब के इसी अखबार पानीपत हरियाणा संस्करण में 20 सितंबर 2012 में एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था, आज भी पाकिस्तान में ठोकरें खा रहा है पंजाबी मुसलमान। ये लेख पढ़नी है, इस प्रकार है। इसकी मैं पढ़ के बताता हूँ कि हुआ क्या था, एक्चुअल में हुआ क्या था। ये जितने भी मैंने आपको सबूत दिए कि जो नौनिका दत्ता या सुभाषिनी आर्य या और भी लोगों से आते हैं कि ब्राह्मण बनिए हथियार और कारतूस देने के लिए पैसे दे रहे थे, जाट उस पर जाटों ने मारना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ से इसी बनिया ग्रोह, जो कि आज भी वहां पर बनिया ग्रोह है, जिसके मोहम्मद अली जिन्ना भी मेंबर थे, और वो जो लामा इकबाल के लोग थे वो भी थे, तो उन्होंने भी जब मारकाट शुरू कर दी, तो अंत में इसका जो सबसे खतरनाक रूप धारण हुआ वो हुआ पंजाब में, जब दोनों तरफ से जाके खबरें फैला दी, इधर आर्य समाजियों ने और उधर मोहम्मद अली जिन्ना के ग्रोह ने, तो सारा पंजाब जल उठा और सारे के सारे पंजाब में मुसलमान, हिंदू और सिख मारे गए, जिसमें 950,000 कबीलाई थे, मात्र 50,000 से कम ब्राह्मण और बनिए थे।
तो इसके बारे में जो मुस्लिमों का व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये उन्होंने इंटरव्यू दी है, किसने? जस्टिस सैयद आसिफ शाहकार, जो अब स्वीडन में है, उन्होंने। शुरू में कांग्रेस पार्टी सेकुलर और तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा थी, लेकिन बाद में इसमें कट्टर हिंदू धड़ा घुस गया, जिसने इस हिंदू पार्टी को रंग देना शुरू कर दिया। यह हिंदुस्तान में हिंदू का प्रभुत्व चाहता था। इसने अगर एक तरफ मजहब की सियासत में रोड़ की, तो दूसरी तरफ मजहबी पार्टियों की बुनियाद रखी, तो दूसरी तरफ इसी ने आजाद, एकजुट और सेकुलर हिंदुस्तान की इमारत की बुनियाद रखी। उल्टी ईंट लगाकर सारी इमारत टेढ़ी बना दी, और इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। अजीम हिंदुस्तान बंट गया। सांप्रदायिक फसादों में लाखों इंसान मारे गए, जो आज तक मारे जा रहे हैं, और जंग हुई। सोचो अगर हिंदुस्तान बढ़ाना होता तो आज का हिंदुस्तान क्या होता। राइटर की भावना है, वो आज भी इसको हिंदुस्तान समझ रहा है, जबकि हिंदुस्तान नहीं भारत है। पर उसने जो रेफरेंस दिए हैं, इसलिए मैं इस किताब को साथ रख रहा हूं कि उसने बहुत ही कोशिश से रेफरेंस पकड़े हैं। हालांकि मेरे पास 3 किताबें खुली हुई हैं, पर तीनों किताबों में से पैरेलल मैं आपको सबूतों के साथ जो बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि पंजाब में दंगे हुए। आज के पंजाब में दंगे नहीं थे हुए। वो ये शुरुआत रोहतक और झज्जर और वहां से हुई थी, और दूसरी तरफ ये वो सियालकोट के ईस्ट में जो थे गुजरांवाला, ये वो वहां से हुई थी। जहां जहां पर बड़े शहरों में ब्राह्मण बनियों का कब्जा था, हथियार पहले पहुंच चुके थे। ये बहुत से लोग कहते हैं अचानक हुआ। अचानक नहीं हुआ। 1-2 दिन में इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। समझने वाली बात है। इतना बड़ा कांड करने के लिए ब्राह्मण बनिया तिकड़ी, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना शामिल था, गांधी शामिल था, नेहरू शामिल था, लामा इकबाल शामिल था, ये सारा गिरोह शामिल था, लाला लाजपत राय के वंशज शामिल थे। ये प्लान पहले ही बन चुका था। गुलवर्कर जैसे लोग पहले आके इधर चक्कर लगा के जा चुके थे। सारा असला वसला, कारतूस, कार्ट्रिज दोनों तरफ जमा हो चुके थे 9.5 लाख कबीलाइयों को मारने के लिए। उसकी एक भी और कारण है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी इनकी। और ये जो आर्य समाजियों ने ये जो लोग बनाए थे, जिनको कहा गया था कि तुमने शादी नहीं करनी, बच्चा नहीं प्रोड्यूस करना, ये भी किसान कबीलाइयों के बच्चे थे। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम का पॉपुलेशन कंट्रोल सिस्टम था। जैसे आज भी पंजाब हरियाणा की तरफ लाया जाता है बच्चे 2 ही अच्छे, पर यूपी और उधर 10-10 20-20 बच्चे बना के इधर कबीलाइयों की जमीन पर वोट बैलेंस आउट करने का जो चक्कर चल रहा है, वो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। अगर आपकी आंखें खुली हैं और पीछे से दिमाग भी थोड़ा सा खुला है, तो आप आज भी देख सकते हैं कि ड्रामा क्या हो रहा है हरियाणा में, पंजाब में, इधर उधर, ये ड्रामा क्या हो रहा है। तो आप अच्छे से समझेंगे इन बातों को। कांग्रेस के इस कट्टर दड़े के अपने असर रसूख का एक सबूत यह भी है कि अगर कांग्रेस का शीर्ष स्तर पर मुसलमान और सिख बैठे थे, लेकिन आम मुसलमान और सिख को पार्टी में शामिल करने पर कभी भी जोर नहीं लगाया था। उसकी वजह कांग्रेस में गैर हिंदू हिंदुस्तानियों की तादाद को कम से कम रखना था, ताकि वे पार्टी में एक ताकतवर दड़ा ना बन सकें। जब एक आम मुस्लिम और सिख की तरफ ध्यान ना दिया गया, तो यह कांग्रेस के बददिल होकर दूसरे रास्ते ढूंढने लगे। मजहब के नाम पर पार्टियां बनने लगी। हिंदुस्तान के लोगों को बाढ़ने वाला यही दड़ा था। इस दड़े के बर्ताव के नतीजे, और कांग्रेस किसके कब्जे में थी, आज किसके कब्जे में है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। आज भी वो ब्राह्मणों के कब्जे में है। हालांकि वो सबसे दुनिया का चोमू ब्राह्मण जो राहुल है, वो भी सोच रहा है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। अच्छी बातें हैं, पर कोई बात नहीं। इस दड़े का मोहम्मद अली जिन्ना और कुछ सिख लीडर भी इसको छोड़ कर गए। मजहब के नाम पर बनी सियासी पार्टियां फैलने लगी और मुकाबला शुरू हो गया। हर पार्टी ने अपने मजहब के लोगों को पार्टी में शामिल करने के लिए हर जायज और नाजायज हथकंडा इस्तेमाल किया। उस वक्त मुसलमान पंजाबी मुस्लिम लीग के हत्थे चढ़ गया। बिल्कुल सही। बहुत ही प्लान के साथ जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसको डिमोलिश करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर पत्ता फेंका, और यूनियनिस्ट मिशन में से आर्य समाजी कांग्रेस ने खींच लिए, और जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम लीग ने खींच लिया। और यूनियनिस्ट पार्टी, जो कि पंजाबियों की अपनी पार्टी थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे,
उसको क्लैप्स करवा दिया गया। गांधी था बड़ा जो सियासी, ये तो अभी पता चला ही है। अपना यह मकसद हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग ने हर घटिया से घटिया हथकंडा इस्तेमाल किया। उसने झूठ के पुल बांध दिए, धोखों के अंबार लगा दिए गए। इसमें मुसलमान पंजाबी को मजहबी तौर पर हर तरीके से गुमराह किया, उसको हिंदू और सिखों से खतरों से डराया। वही काम जो इधर आर्य समाजी हिंदुओं के साथ कर रहे थे, मुस्लिम लीग वही काम मुस्लिम पंजाबियों के साथ कर रही थी। तकसीम हो गई। पंजाबी मुसलमानों की बड़ी तादाद गांव में रहती थी, जिसमें अक्सर जाहिल थे। जो ज्यादा कम पढ़े लिखे मुस्लिम थे, वो ज्यादातर मुस्लिम गांव में रहते थे। किसी को कुछ इल्म नहीं था कि क्या हो गया है। यही बात सिखों के साथ हुई। यही बात सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ, और जो गांव के जाट, किसान, कबीलाई, गुज्जर समाज, ये सब के साथ हुई। उन्हें पता ही नहीं चला कि शहरों में क्या हो गया, क्या ये तकसीम क्या है। तो उन्हें कुछ पता नहीं चला। कंफ्यूजन की हालत में यह पश्चिमी पंजाब की ओर चल पड़ा। तकसीम से पहले मुसलमानों और सिखों में जो मुकाबलेबाजी लगी थी, उसके नतीजे से सिखों की कम तादाद में होने के डर से अपने बचाव के लिए अपने आप को एकजुट कर लिया। तो सिखों की क्योंकि आबादी कम थी, तो उन्होंने भी अपने को एकजुट करना शुरू कर दिया। नाम नेहाद जंगजुओं की भर्ती होने लगी। ये याद रखें, ये मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको कुछ पंजाबी, इंडियन पंजाबी भी कह देते हैं अच्छा था, उसकी एग्जाम्पलें भी दे देते हैं, ये उसकी साजिश है। ध्यान से समझे। नाम निगाह जंगजू, जो कि जैसे आर्य समाजी भर्ती कर रहे थे मुसलमानों को मारने के लिए, उधर उधर भर्ती किए जा रहे थे। नाम निहाद जंगजू की भर्ती होने लगी। जत्थे बन गए, हथियार इकट्ठे हो गए, आगे चलकर लड़ने और जत्थों को तरबियत देने के लिए दूसरी जंगे अजीम में लड़कर गए। और फिर उसमें बाद में जो तलाश किए गए, फौजी भी तलाश किए गए, साथ कुछ राजाओं की भी पुष्टपनाही हुई। पूरी तैयारी हो चुकी थी। जब मुसलमान पंजाब, पश्चिमी पंजाब की तरफ चला, तो सिखों के जत्थे उन पर टूट पड़े। और जो सिख जब ईस्ट की तरफ चले पाकिस्तान में, तो ये ही जंगजू जो थे, ये उन पर टूट पड़े। तो ब्राह्मण बनिए खुद शहरों में बैठकर किसान कबाइलियों का कत्लेआम आराम से देख रहे थे, जैसे वीडियो हो, मूवी चल रही हो, जबकि अपने खून को सेफ पैसेज देकर वहां से निकाल रहे थे। चाहे मुस्लिम बनिया हो, ब्राह्मण हो, वो अपने खून को हिंदुस्तान भेज रहा था, भारत। और जो शहरों में बैठा हुआ ये आर्य समाजी या हिंदू ब्राह्मण बनिया था, ये यहाँ के अपने मुसलमान ब्राह्मण बनियों को सेफली निकाल के पाकिस्तान भेज रहा था। जिथे मुसलमान को मार मार कर ऐसी की फेर दी। बहन बेटियों के साथ बलात्कार तो अलग रह गया। उनको बाजारों में नंगे करके जुलूस निकाले गए दोनों तरफ। जिन मुसलमानों ने जान बचाने के लिए सिख बनने की मिन्नत की, उनको भी जत्थों ने कत्ल करने के शौक कर दिए। जिन दोनों तरफ हुआ ये। मेरे पास एक शायद मैं उस भाई को कभी अपने साथ जोड़ सकूं। उसके दादा की स्टोरी है, जो कि बाद में इंग्लैंड में मरे हैं। बहुत दर्दनाक स्टोरी है, बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। दोनों तरफ की बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। किसान कबीलाइयों की बहन, अपनी ही बहन बेटियां, अपने खून की बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली गई। और यहां तक भी सब्र नहीं हुआ, तो अपनी ही बहन बेटियों को, जैसे मलिकों ने, जो मलिक ये हरियाणा के थे, इन्होंने अपनी ही मलिकों की बेटियां जो मुसलमान हो चुके थे, उनकी बेटियों, बहन बेटियों को नग्न करके जुलूस निकाले और ब्राह्मण बनिए तालियां मार रहे थे, तालियां पीट रहे थे इन पे कि बहुत अच्छा किया है। और यही हालात पाकिस्तान में। वहां पर बैठे शहरों में ब्राह्मण बनिए जो थे, उन्होंने उन मुसलमानों के हाथों से उनकी ही बहनों की नग्न परेड करवाई। ये इतिहास गवाह है 1947 का। और जो मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा था, वो ये हुआ था कि हमारा दोस्त है, वो उनसे मेरी बात हुई थी। उनके फादर, लाइक मेरे दोस्त के फादर साहब हैं, उन्होंने मुझे बात बताई थी कि जो उनके फादर थे, ही वॉज वेरी वेरी यंग,
1947 में उनके सर पे बड़ा जूड़ा हुआ करता था, जो सिख रखते हैं, बड़ा जूड़ा हुआ करता था। तो हुआ क्या कि मुसलमानों ने सिखों के लोगों को पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया, तो जब दोबारा वो जो ये जंगजू जत्थे थे बनाए हुए उस तरफ, उनमें से एक फिर से लोगों को अंदर फेंकने आए, तो इसने उनमें से एक बंदे को पहचान लिया। तो इसने अंदर से आवाज़ लगाई, अब मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद, क्योंकि मैंने ये कहानी काफ़ी 15-20 साल पहले सुनी है। तो उसने अंदर से आवाज़ लगाई कि कुछ करीम चाचा के कुछ चाचा, मैं भी यहाँ पे हूँ। जो पंजाबी में उन्होंने बोला कि चाचा जी मैनू भी ताड़ता इत्थे। तो उस जो मुसलमान था वो अंदर जो इनको ताड़ कर चला गया, पर जब उसका जत्था वापस लौट गया तो फिर भी उनके दिल में था कि ये हम कर क्या रहे हैं? तो पगला गया था समाज तब। वो जब सारा जत्था चल गया तो फिर वापस आया और उसने उस लड़के को वहाँ से निकाला कि मैं सबको नहीं छोड़ सकता, मुझे मार देंगे। उसने उस लड़के को निकाला और ईस्ट की तरफ डायरेक्शन देके भगा दिया कि तू उस तरफ भाग जा, उस तरफ है जहाँ पर बना है भारत, हिंदुस्तान बना है। तो वो लड़का वहाँ से भागा और भागते-भागते वो यहाँ पर पहुँचा और बाद में वो नेचुरली जो लोग उस कमरे में थे डेफिनिटली मुसलमानों ने उनको मार दिया होगा। इसी तरह से जैसे झज्जर में इधर बसों का हमने ये सारा इंसिडेंट सुना कि कैसे आर्य समाजी इनको मार रहे थे। वो लड़का बाद में इंग्लैंड आया, बहुत बड़ी फैमिली उनकी बनी। तो वो दादाजी को भी मैंने देखा है। बुजुर्ग हो चुके थे, पर उनके बेटे ने मुझे ये कहानी बनाई कि मेरे बाप ने ये मुझे कहानी सुनाई थी कि मैं उस वक़्त उस गिरोह के वजह से अंदर गिर गया था और वहाँ के एक मुस्लिम ने मुझे अकेले को छोड़कर भगा दिया कि मैं सबको नहीं छोड़ सकता, मुझे भी मार देंगे, इन सबको मारना ही पड़ेगा, पर तू इतने साल मेरा भतीजा है, तू भाग जा, इस तरफ है हिंदुस्तान। ये मैंने एक्चुअल में स्टोरी वो डर्बी शहर में रहते हैं बुज़ुर्ग, अब तो पूरे हो गए होंगे, उनसे सुनी थी, मान गोत्र के जाट थे वो, उनसे सुनी थी ये कहानी। अ, इस दूध पीते नन्हे-नन्हे बच्चों को टाँग पर टाँग रखकर दरमियान में से चीर दिया गया। ये हमने देखा है, बार-बार देखा है, दोनों तरफ से देखा है। हरा पंजाब खून से लाल हो गया, ज़ुल्म की इंतहा हो गई। ना जाने ये कौन से सिख थे, कौन से मुस्लिम थे, कौन हिंदू थे। ये बाबा नानक का देश नहीं हो सकता, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब का देश नहीं हो सकता, क्योंकि श्री गुरु गोबिंद सिंह और गुरु नानक से ये देश जो था, ये मोहम्मद अली जिन्नाह और गांधी और मूल शंकर तिवारी ने छीन लिया था। ये लोग जो थे, ये गुरु नानक से, ये राइटर लिखता है कि ये गुरु नानक का पंजाब नहीं हो सकता, तो गुरु नानक से एक साजिश के तहत ये जो देश था, ये मोहम्मद अली जिन्नाह एक बनिए, दूसरे बनिए मोहम्मद गांधी, महात्मा गांधी जिसको कहते हैं, बकरी वाला, उसने और मूल शंकर तिवारी ने छून कर इतनी नफरत आपस में भर दी थी कि ये राइटर ने लिखा है उस किताब के रेफरेंस के कि एक बच्चे को टांग पे टांग रखकर चीरते हुए लोगों ने खुद देखा। यह क्या बचा खुचा और लुटा पुटा मुसलमान पंजाबी पाकिस्तान पहुंचा तो उसका कुत्तों से भी बुरा हाल हुआ। उसका ठोकरों के साथ स्वागत हुआ और वह आज तक ठोकरें खाता फिरता है। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज भी पाकिस्तान पंजाब के लोगों ने उन्हें नहीं अपनाया। एक स्पेशल टर्म उनके लिए दी गई है, मुहाजिर। मुहाजिर यूज किया जाता है कि जो लोग इधर रोहतक में, हरियाणा में, इधर बड़ी बड़ी हवेलियों के मालिक हुआ करते थे, उनको मुहाजिर बना दिया गया। कौन था ये? पंजाबी थे, दोनों तरफ के पंजाबी थे, बड़े 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 लोग, कुछ भी ना लेकर खाली हाथ पहुंचे थे दोनों तरफ। ब्राह्मण बनिया नहीं इसमें पैसा था, उसकी मैं स्टोरी आपको आगे बताऊंगा। और सर छोटू राम बताते हैं, उससे हमें समझ आ चुकी थी कि कैसे ये लोग करेंगे, पर सर छोटू राम तब तक, आज से 2 दिन पहले, मतलब कि 9 जनवरी 1945 को इस सारे पंजाब को छोड़कर जा चुके थे। और अगर वो जिंदा होते ये कभी एक्शन ना होने देते, पर नहीं। जैसे महाराजा रंजीत सिंह के जाने के बाद जो सिख राज था वो अचानक से गिर गया, कोई उसको संभालने वाला नहीं था। ऐसे ही सर छोटू राम के जाते ही सारे का सारा जो पंजाब था वो बहुत बड़े लेवल पे इन ब्राह्मण बनियों के षड्यंत्र का शिकार हो गया। यह आज तक पाकिस्तान में नहीं कबूले गए।
इन्हें आज तक पनाहगीर और पनाही कहलाता है, मतलब कि मुहाजिर कहलाते हैं। तकसीम के बाद पाकिस्तान की हुकूमत चलाने के लिए अफसरों और मुलाजिमान की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली से, यूपी से और बिहार से मुस्लिम अफसर और मुलाजिम लाए गए। बिल्कुल समझिए, बिल्कुल टिट्टो कॉपी हो रही है दोनों कंट्रीज में। एक तरफ जो भारत बना है, जहाँ हिंदुस्तान है, वहां पर भी ब्राह्मण बनिया टेक ओवर कर रहा है, और दूसरी तरफ जो नया नया पाकिस्तान बना है, वहां पर भी उसी तर्ज पर ऑफिसर भर्ती किए गए। ये अफसर और मुलाजिम नस्ली इम्तियाज से भरे हुए थे। इनके लिए ये मुसलमान पंजाबी मुहाजिर ना तो पाकिस्तानी थे और ना ही मुसलमान बल्कि पंजाबी था। तो ये भी जैसे इधर हो रहा है वैसे ही उन लोगों ने भी इंतहा पंजाबियों से नफरत करते थे, जो पाकिस्तान के जाके ऑफिसर लगे थे यूपी और उधर से। पाकिस्तानों में महाजरों को दो हिस्सों में बांटा दिया गया। एक यह पंजाबी महाजर था, दूसरा यूपी और बिहार का। यूपी और का महाजर लाडला महाजर था। पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले पर वजीर आलम लियाकत अली ने यूपी और बिहार के महाजरों के लिए अलग कानून बनाया। ध्यान से सुने। अगर आप सोचते हैं कि ब्राह्मण बनिया इस्लाम में चला गया और वो अच्छा हो गया, नहीं, वो अच्छा नहीं हुआ। लियाकत अली खान ने उर्दू बोलने वाले लाड़ले मुहाजिर पर वजीर ए आलम जो लियाकत अली थे, उन्होंने अलग कानून बनाए। इस कानून से माध्यम से इस लाड़ले महाजिर को छूट दी गई कि अपने क्लेम के लिए उसे किसी कागजी सबूत की जरूरत नहीं है। वो वह जो वह मुंह से निकाले उसको ज्यों की त्यों मान लिया जाए। इसके मुकाबले में पंजाबी महाजिर जो हरियाणा पंजाब इधर उधर से उधर कर गए थे पाकिस्तान, कि मैं दोनों तरफ की बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक तरफ हुआ, दोनों तरफ जो किसान कबीलाई समाज है उसको खूब लूटा गया, खूब लेताड़ा गया, खूब मारा गया। उनको इसके मुकाबले में पंजाबी महाजिर के लिए लाजमी था कि वह अपने क्लेम के लिए कागजी सबूत लिखाए। अगर तो यूपी बिहार उधर से आया कोई भी मुसलमान यह कह देता है कि मेरे पास वहां पर 10 एकड़ जमीन थी, तो उसे लॉट कर दिया गया। पर अगर पंजाबी मुहाजिर ने क्लेम करना था, तो उससे उसके कागजात मांगे गए। और ये किसने किया? लियाकत अली ने। बहुत से पाकिस्तानी पंजाबी वो भी चोमू हैं, वो इनको मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, फलां भटकाएं ढकाएं बोलते रहते। जैसे हमारे भी इधर बहुत से लोग कहते हैं महात्मा गांधी बहुत बड़ा हो गया, ये बड़ा बहुत बड़ा हो गया। तो दिमाग उनका भी जीरो ही है, वो तो हमें पता है पहले से ही। पर ये कानून बना था, याद होगा, जो बुजुर्ग होंगे उनसे पूछें, कभी अगर कोई पाकिस्तानी भी नीचे बैठा है तो उनसे पूछें कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था। यस, ये क्योंकि ये सारी की सारी किताबें जो है सबूतों के साथ लिखी गई हैं। वजीर आलम लियाकत अली ने लाड़ला महाजिर के लिए अलग कानून, और पंजाबी जिनसे वो इंतहा नफरत करते थे उनके अलग कानून बनाए। अब कौन, इसमें थोड़ा-सा उसने बैड शब्द यूज़ किए हैं, पर यूज़ करने पड़ेंगे। अब कौन भड़वा ऐसे हालात में अपनी जायदाद के कागज़ात साथ लेकर चलता है? तो मेरे ख्याल से है कि जो राइटर है बहुत नाराज़ था दोनों पार्टियों से। तो उसने लिखा कि ऐसे हालात में जब जान-माल अपनी बहन-बेटियों की इज़्ज़त का है सवाल है, तो कौन कागज़ात साथ लेके चलता? तो जो पंजाब और हरियाणा से पंजाबी मुहाजिर गए, उनको आज तक, और ये सच्ची बात है, आज भी कहीं पाकिस्तानियों से बात करें वो आपको बताएंगे महाजिर कौन है। और जो महाजिर थे उनको आज भी उनके हक नहीं मिल सके। वो आज भी कहते हैं कि जलंधर में हमारे इतने एकड़ थे, हमें कभी यहाँ नहीं मिल सका, क्योंकि उनसे वहां पर जाकर कागजात मांग लिए थे। अगर वो सच में उनको मुसलमान समझते होते तो कभी भी उनसे कागजातों की मांग नहीं करते, सबको एक जैसा पर नहीं हुआ था। इस वक्त कुछ लोगों के जाली कागजातों की दुकानें खोल दी यूपी और बिहार के इन अफसरों ने और मुलाजमों ने। अगर एक तरफ झूठे क्लेमों के जरिए जी भरकर हिंदू सिखों की कीमती जायदादें अपने नाम लगवा दी, दूसरी तरफ रिश्वत पैसा लेकर भी घर भर लिए। जितने भी ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। पाकिस्तान में यूपी और हरियाणा से गए हुए इन्हीं ब्राह्मण बनियों के मुस्लिम हो चुके बच्चों ने ऑफिसर बन के, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है, आर्या समाज और दूसरी तीसरी पार्टियां क्या कर रही थी, किसानों के बच्चों को कह रही थी तुमने नहीं पढ़ना, तुमने मस्जिद में पढ़ना है, तुमने गुरुकुल में पढ़ना है, पर अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेज रही थी, चाहे वो ब्राह्मण बनिए हिंदू धर्म में थे
ब्राह्मण धर्म में थे या वो मुस्लिम थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी बाहर से पढ़ के आया था और गांधी भी बाहर से पढ़ के आया था, नेहरू भी बाहर से पढ़ के आया था, याद होना चाहिए। इसी के चलते सर छोटू राम ने एक फंड भी खोला था कि हमारे किसान कबीलाई बच्चों को ये लोग पढ़ने से रोक रहे हैं, तो उन्होंने जो फंड खोला था उसी से पढ़कर, उसी फंड से पढ़कर जो पाकिस्तान बाद में चले गए थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसी फंड से पढ़कर वो इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त करके इतने बड़े फिजिसिस्ट बने थे, जबकि वो किसान कबीलाई परिवार से बिलोंग करते थे। पर इन ब्राह्मण बनियों की जो ये साजिश थी, इसको आगे हम और साइफर करने की जब कोशिश करेंगे तो आपको और पता चल जाएगा कि इन किसान कबीलाइयों के साथ इन ब्राह्मण बनिए, हिंदू हो चुके ब्राह्मण बनियों ने यूपी से जाकर ऑफिसर लाके उनकी जमीनें जो उनको जो रोहतक से पाकिस्तानी गए मुस्लिम गए थे, जो उनकी जमीन होनी चाहिए थी, जो हरियाणा जो जलंधर से उजड़ कर गए थे, उनको देने की बजाय उनसे पेपरों की मांग की गई और खुद खुद अपने और उर्दू स्पीकिंग दूसरे लोगों के नाम पर वो जमीन जायदादें करवा ली गई, क्योंकि आपको याद होगा सिंध और उधर उधर से उजड़ कर आए थे, वहां पर सिखों की हिंदुओं की प्रॉपर्टीज थी जो कि इन रोहतक हरियाणा जो है आज और जलंधर है, होशियारपुर है, वहां से गए हुए मुसलमानों को मिलनी थी, पर नहीं, उनको देने की बजाय यूपी बिहार से लाकर मुसलमानों ने अपने नाम कर ली थी। और इसके लिए सबसे था लियाकत अली खान का बनाया गया हुआ ये लाडला मुहाजिर वाला डायलॉग कि अगर कोई यूपी बिहार की तरफ से आता है तो उससे बिल्कुल पेपर मत मांगो, पर अगर कोई पंजाब का किसान कबीलाई आता है तो उससे प्रॉपर पेपर मांगो, तब उसे दो। पर जबकि आप जानते हैं तब इतनी लूटपाट हो रही थी, लोग मर रहे थे, लोगों की बहन बेटियों की इष्टें लूटी जा रही थी, तो क्या वो पेपर साथ में लेकर घूम रहे थे और पता भी नहीं था। अचानक गांव में बैठे हुए इन लोगों पर ये आफत आ गई थी कि आज देश बंट गया है, निकलो यहां से। तो वो कहां से वो पेपर लेके आते हैं? पाकिस्तान में रिश्वत और भ्रष्टाचार की बुनियाद रखने वाले यही अफसर तथा मुलाजिम थे। कौन थे ये? आज जो पाकिस्तान का बुरा हाल है, ठीक है अब पंजाबियों ने टेक ओवर कर लिया, पर इसकी बुनियाद ये जो रिश्वत और भ्रष्टाचार है, इसकी इसकी जो स्टेज सेटिंग या इसकी जो नींव रखने वाले वो बिहारी और यूपी के मुस्लिम थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना और उन सब ब्राह्मण बनियों के इशारे पर वहां पर गए थे एक टाइम पर। इस तरह हिंदुओं तथा सिखों की छोड़ी हुई लगभग सारी शहरी जायदाद इनको मिल गई और पंजाबी मुहाजिर को मिला ठूंठा। पूरा उसने हरियाणवी स्टाइल में लिखा है, क्योंकि ये राइटर हरियाणा से आते हैं तो उन्होंने बिल्कुल उसी स्टाइल में लिखा है। तो उसने बोला कि ये जो पाकिस्तान चले गए पंजाब से, पंजाब के जो जट गुज्जर सैनी कंबोज लुबाना, ये जो किसान कबीलाई लोग थे, जब ये पाकिस्तान गए तो इनके हाथ में पकड़ा दिया गया ठूंठा, और जितनी भी सिख और हिंदू जो छोड़ के आए थे पाकिस्तान, उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया इन ऑफिसर्स ने जो कि यूपी और उधर से आए थे। गांवों की जायदाद कुछ तो जागीरदारों ने काबू कर ली तथा कुछ स्थानीय लोगों ने जाली कागज दाखिल करके अपने नाम करवा ली। अब इस पंजाबी मुहाजिर के पास भूख नंग तथा रोने के अलावा गुस्सा व नफरत थी। इसमें से कुछ के पास यह नफरत पाकिस्तान बनाने वालों के लिए थी तथा अधिकतर के पास सिखों और आर्य समाजियों के लिए थी। यही यह गुस्सा तथा नफरत थी जिसने उसे पंजाबी से पाकिस्तानी बना दिया। बहुत पढ़ने वाली बात है, अच्छी समझने वाली बात है कि ये जो मुहाजिर गए थे यहाँ से, जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उनमें से बहुत से उनकी फैमिली मेंबर्स मारे गए, दोनों तरफ मारे गए, सिख भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए। पर ये जो स्पेशल पाकिस्तान गए थे, पर उन पर ऑफिसर कहाँ से लगा के, ये पंजाब साइड और हरियाणा साइड का गुड लक ये हो गया कि यहाँ के लोगों ने, हालांकि गांधी ने बहुत कोशिश की, नेहरू ने बहुत कोशिश की थी कि वहां पर ऑफिसर लगा दिए जाएं, पर सिखों का उस वक्त फौज में होना एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा और उन्होंने ऑफिसर अपने लगवा लिए, वरना हालात बहुत खतरनाक होते इधर भी, किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिलती जैसे उधर हुआ। ये पूरे प्लान के साथ हुआ था। देखिए अचानक से नहीं हुआ कि अचानक से यूपी से ऑफिसर उड़े और यकदम से पाकिस्तान पहुंचे और वहां पर लगे, नहीं।
एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट प्री प्लान, कज ये जो ब्राह्मण बनिया ग्रुप था इसको ये बात 1913 में और उसके बाद में 1918 में पता चल गई थी। 1918 में इनको पता चल गया था कि किसी ना किसी दिन ये देश आजाद होगा। प्लानिंग तब से ये शुरू कर चुके थे। हम बाकी लोगों को 1947 में अचानक अपने गांव में, जब वो गांव में खेत से पानी लगा के आया होगा तब पता चला होगा कि ये हो गया। इनको भी ये पता 1918 में लग गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, ब्राह्मण जो अपना वो था, क्या नाम था उसका, लामा इकबाल, गांधी बढ़िया, मूलशंकर तिवारी ब्राह्मण, लाला लाजपत राय जैसे थे सब इन्वॉल्व उस सारी गेम में। तो इनको ये बातें 1918 के करीब ही पता चल गई थी कि हमने किस तरफ जाना है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि वोटिंग यूपी में हो पर बांट दिया जाए पंजाब और बंगाल को। तो एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ प्री प्लान्ड और अचानक से सारे ऑफिसर यूपी से लियाकत अली खान के वो जो मैंने आपको बताया लाडला मुहाजिर और जो दूसरा मुहाजिर है उसके पेपर चेक करने, ये ऐसा नहीं था कि अचानक से हुआ, प्री प्लान्ड था। तो ये जो आर्य समाजी, ये जो मुस्लिम थे तो इनकी जो नफरत सिखों और आर्य समाजियों के लिए थी या हिंदुओं के लिए थी, उससे वो पक्के पाकिस्तानी बन गए। जब वह पाकिस्तान बन गया तो फिर यह वह यूपी बिहार की फौजी तथा सिफल अफसरशाही यूपी ब्रांड पाकिस्तान का शोर डालने वाले दानिश्वरों, बेईमान पखंडी व भ्रष्ट राजनीतियों तथा मीडिया की उंगलियों पर नाचने लग पड़ा। इन्होंने इसकी इतिहास, संस्कृत बोली तथा पंजाबी कौम प्रस्ती में लगी जड़ें काटकर इस पर एक जाली कौम प्रस्ती पाकिस्तानियत का खोल चढ़ा दिया। बिल्कुल हमें साफ नजर आता है। बिल्कुल राइटर ने वो क्या कहते हैं, बिल्कुल जो कील है उसके सर पर हथौड़ा दे मारा है। बिल्कुल ऐसा ही हम देखते हैं। आज का जो पाकिस्तानी पंजाब है उसको अगर ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल ऐसा है। जब वह पाकिस्तान बन गया तो फिर यह यूपी बिहार की फौज तथा सिविल अफसरशाही यूपी ब्रांड पाकिस्तान का शोर डालने वाले दानिश्वरों, बेईमानी पखंडी व भ्रष्ट राजनीतिज्ञों तथा मीडिया की उंगलियों पर नाचने लग पड़ा। उन्होंने इसका इतिहास मतलब कि पाकिस्तानी पंजाब जो है उसका इतिहास, हिस्ट्री खत्म की। उनकी संस्कृति जो जाटों की अपनी एक्चुअल संस्कृति थी उसको तोड़ा। जो उनकी बोली, जो उनकी भाषा थी जो पंजाबी है उसकी जड़ें काटी तथा जो उनकी पंजाब के प्रति कौम प्रस्ती थी, जो पाकिस्तानी पंजाबी थी, उनकी पाकिस्तान पंजाब के प्रति कौम प्रस्ती को तोड़कर उसकी जड़ें काटकर एक जाली कौम प्रस्ती पाकिस्तानियत का खोल चढ़ा दिया। पाकिस्तान की अब सिचुएशन क्या है उसमें, जो पाकिस्तान का पंजाब है वो अपनी भाषा छोड़ चुका है। कश्मीरी अपनी भाषा बोलते हैं, पश्तो, बलोची, इवन सिंधी अपनी भाषा छोड़ते हैं, पर पंजाब पाकिस्तान पंजाब के पंजाबियों ने अपनी पंजाबियत को छोड़कर बिल्कुल ये खोल चढ़ा लिया है। बिल्कुल राइटर ने 100% सच लिखा है। अब तक की जितनी भी बातें उसने लिखी हैं, बातें समझने वाली हैं। दोनों तरफ की, ये नहीं कि एक तरफ की, दोनों तरफ की बातें उसने जितनी लिखी है आपको क्लियर कट ये पता चल जाना चाहिए कि ये साजिश किन लोगों की थी। बेजड़ा इंसान बुखलाया होता है। तो अब जब इनकी जड़ टूट चुकी है, ये पाकिस्तानी पंजाबियों की जो जड़ टूट चुकी है, तो राइटर लिखता है कि बेजड़ा, जिसकी जड़ ही नहीं होती, वो इंसान हमेशा बुखलाया होता है। इसी तरह के बेजड़े इंसान को अपनी मर्जी में डालना आसान होता है। अंततः ये पाकिस्तानी पंजाबी पाकिस्तान का ठेकेदार बन गया। उनकी पाकिस्तानियत के दो हिस्से थे। पहला हिंदुस्तान से नफरत। असल में उनकी यह नफरत आर्य समाजी हिंदुओं सिखों के लिए थी, मगर उसने उसको हिंदुस्तान का नाम दे दिया। पाकिस्तान के शासक इस बात को जानते थे। तो समझने वाली बात है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे वो भी इस बात को जानते थे। उन्होंने इस नफरत को ताजा रखने के लिए हिंदुस्तान से निरंतर युद्ध जारी रखे। पहले कश्मीर की लड़ाई, फिर रन ऑफ कच्छ की लड़ाई, फिर 65, 71। इसकी यह पाकिस्तान फारिज्म है और एक पूरे निजाम पर सोचे समझे मंसूबे से इसे फासिस्ट बनाया गया। तो ये ब्राह्मण बनियों का दोनों तरफ जो तलवार चल रही थी, एक तरफ गांधी, नेहरू, मूलशंकर तिवारी ये तलवार चला रहे थे, तो दूसरी तरफ जिन्ना, लियाकत अली खान,
वो तलवार चल आ रहे थे, तो बिल्कुल उसने कि ये जो अब अपनी जड़ों से टूट चुके लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ लठमार की हैसियत वाले पंजाबी रह गए हैं, उन पर चाढ़े आए हुए इस खोल की वजह से लगातार उन्हें जंगों में अब आज भी देख लें, पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई मर रहा है बॉर्डर पे, तो कौन मर रहा है? जाटों के बच्चे, गुर्जरों के बच्चे, किसान कबीलाइयों के बच्चे, शहरियों के बच्चे नहीं मरते वहाँ पे आगे, उस तरफ से भी। और इस तरफ क्या हो रहा है? इधर भी सिख रेजिमेंट लगा दो, जाट रेजिमेंट लगा दो, मराठा रेजिमेंट लगा दो, तो बच्चे तो लाइक एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है टिका के। और जो लोग हैं, जिनका असली ये धंधा है, वो पीछे शहरों में बैठकर आराम से रोटी सेक रहे हैं। इस सारी हिंदुस्तानियत और पाकिस्तानियों की जो ये फर्जाबंदी की गई उस पर अब उन पर रंग पूरा चढ़ चुका है। जब भी पाकिस्तानी सरकार ने फौज के माध्यम से किसी अन्य राज्य पर चढ़ाई की, तो उसकी सबसे बड़ी हिमायत पाकिस्तानी पंजाबियों ने की। इस तरफ हमने देखा है कि किस तरह सन 1947 में पंजाब बर्बाद हुआ, और पंजाब की इस बर्बादी में आर्य समाज की क्या भूमिका थी। पंजाब के मुसलमानों को जितना पाकिस्तानी मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बना पाया, उससे अधिक पाकिस्तानी 1947 की मार काट करके आर्य समाज ने बना दिया। तो बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना और ये आर्य समाजी मूल शंकर तिवारी, और दूसरा एक और बनिया जिसका नाम है गांधी बकरीवाला, ये सारे के सारे पूरे के पूरे प्रोपोगंडे के तहत एक ही कौम को हिंदुस्तानियत, वेरी वेरी हिंदुस्तानियत, और दूसरी तरफ वेरी वेरी पाकिस्तानियत करने के चक्कर में कैसे इन्होंने साजिशें की और भाई के हाथ से भाई कैसे मरवाया। अपनी ही कुल की, मतलब कहने का ये कि जैसे मैंने वो गांव की आपको एग्जांपल दी, वो मलिकों का गांव था, मलिकों का गांव था, गढ़वालों का गांव था, मतलब अपनी ही गोत्र की लड़कियों की ना सिर्फ इज्जत लूटी, बल्कि उनके नंगा करके अपने ही गांव शहरों में गमाया। ये था वो सबसे बड़ा षड्यंत्र जो इस ब्राह्मण बनिया वर्ग के लोगों ने, ब्राह्मणियत जिसको ब्राह्मणवाद बोलते हैं, उसने कबीलाई समाज के खिलाफ जड़ा। और इसकी सबूतों के सहित, लोगों के नामों के सहित जितनी भी हमने किताबों में से रेफरेंस लिए हैं, उनसे हमें पता चलता है कि इस बात में 100% सच्चाई है। अभी हमारा कोई पाकिस्तानी भाई जो खुद मुहाजिर हो, वो अगर नीचे बैठा हो, या कोई बुजुर्ग हो जिससे हम बात कर सकें, जब वो उस टाइम पे उजड़ के गए थे, वो या इधर भारत की तरफ बैठा हुआ कोई हमारा बुजुर्ग हो जिन्होंने 1947 की वो काला दौर देखा है, अगर हो कोई उसका बच्चा सुन रहा हो हमें, या कोई हो, तो प्लीज मेरे दादाजी पूरे हो चुके हैं, नहीं तो मैं डेफिनेटली उनको लाता और वो कुछ जरूर ज्यादा साझा करते। क्योंकि वो कहा करते थे कि जब वो वहां पर थे तो उनके 5 एकड़ बाग था फ्रूट का, पर जब वो उजड़ के यहाँ पर आए थे तो उनके लिए कुछ भी नहीं था। उनकी और खेती के साथ साथ उनके पास 5 एकड़ खेत था मालचक में। मालचक जो तहसील जड़ा वाला जो पाकिस्तान में रह गया, ऐसे ही इधर से लोग उजड़ के गए थे। होते वो तो मैं जरूर आज आप लोगों को जरूर उनसे बात करवाता, अगर किसी और का भी कोई ऐसा बंदा बुजुर्ग हो जिसने वो काला दौर देखा है पंजाब का, किसान कबीलाइयों का काला दौर देखा है, जिसमें करीबन करीबन 9.5 लाख के करीब किसान कबीलाई युवा, बच्चे, बूढ़े, औरतें मारी गई थी, और लाखों की तादाद में अपनी ही बहनों के साथ इन मूर्खों ने रेप कर दिए थे, नग्न करके उनको घुमाया, और दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। ठीक है ना? तो शर्मसार है। इसीलिए उस लेखक ने लिखा कि गुरु नानक साहब का जो पंजाब था वो कहाँ चला गया। पर लेखक को ये लिखना चाहिए था कि गुरु नानक साहब के पंजाब को षड्यंत्रकारी मूल शंकर तिवारी, लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, बकरीवाला गांधी, लाजपत राय ने कब्जा लिया था। ब्राह्मण बनियों ने कब्जा लिया था उस पंजाब को, और जितने भी हमारे योद्धा थे उनको भी मरवा दिया था, ताकि वो कभी पावर ना ले सकें। इसी के साथ आज का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मुझे पता है बहुत से लोगों को दोनों तरफ से दुख लगेगा, पर असलियत जो होती है, सच कड़वा होता है, उसे निगलना होता है, उसे पानी के साथ पचाना होता है।
बहुत तकलीफ़देह है और बहुत सा तकलीफ़ होगी हमें, पर यही हकीकत है, यही सच्चाई है और सबूत हमारे सामने है। जो दंगे हुए थे वो हमारे सामने हैं, जो ट्रेनों में लाशें भर-भर के आई थी, वो हमारे सामने है। उन्हें मारने के लिए कोई जिन, भूत-प्रेत नहीं आए थे, वहाँ के रहने वाले किसान कबीलाइयों ने ही मारा था। पर अब जो हमने सबूत दिए कि झज्जर में कैसे कारतूस इकट्ठे हो गए थे, कैसे असला हुआ, किस गाँव में औरत बच्चों को सबको बस में चढ़ा के सारी बस नंबर 40 को आग लगा दी गई थी। सब सबूत हमारे पास हैं। इसी के साथ आज का हम ये रिकॉर्डेड चैप्टर क्लोज़ करते हैं। प्लीज़ ये जो रिकॉर्डेड चैप्टर है, प्लीज़ इसे यहाँ-यहाँ तक पहुँचाया जा सके। एवरीबॉडी इज़ फ्री टू डाउनलोड इट। अपने हिसाब से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है। हमारा सिर्फ़ जो कोशिश है कि समाज पर ये जो ज़ुल्म हुआ है, इस इन और जहाँ जो ये षड्यंत्र है, इसको हम साइफ़र कर सकें, लोगों को बता सकें कि कैसे लोग अपने मतलब के लिए आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। कोई कॉपीराइट या कुछ ऐसी बात नहीं है। आप डाउनलोड करके अपने-अपने चैनल यूट्यूब, फेसबुक कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं। एवरीबॉडी इज़ फ्री टू डू सो। थैंक यू वेरी मच जी। इसके साथ ही हम ये स्पेस क्लोज़ करते हैं और दूसरी तरफ हम बनाएँगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए अगर कुछ कुछ उसमें शामिल होना चाहता है तो प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर आएँ। थैंक यू जी।